ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اب تو علیحہ کو اکثر ہی کام کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہ ہوتا اور وہ آفس میں دیر تک بیٹھی کام کرتی رہتی۔ ٹیوشن آنے والے بچوں کے بھی امتحانات ہو چکے تھے، اس لیے اب اسے کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی، تو وہ اپنے سارے کام ختم کر کے ہی گھر کو جاتی تھی، اور کام ختم کرنے میں اکثر اسے بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا تھا۔ مگر اس نے اماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اماں اس کا کھانے پر انتظار مت کیا کریں۔ جس دن اسے زیادہ ٹائم ہو جاتا تو وہ اماں کو فون کر کے بتا دیتی، اور اماں بے فکر ہو کر لیٹ جایا کرتی، جبکہ آس پاس کے لوگوں نے اب باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ ماں نے بیٹی کو آزادی دے رکھی ہے اور وہ رات کو دیر سے گھر واپس آتی ہے۔ مگر اماں کو تو علیحہ پر پورا یقین تھا، اسی لیے انہوں نے لوگوں کی باتوں کو کبھی سر پر سوار نہیں کیا۔ علیحہ جب بھی لیٹ ہو جاتی تو آفس کا ڈرائیور اسے گھر تک چھوڑنے آ جاتا۔ ایک دن شدید بارش تھی اور آفس کے سبھی ڈرائیور چھٹی پر تھے، اور علیحہ جب آفس سے جانے لگی تو آفس میں زارون کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو زارون نے علیحہ سے کہا کہ اتنی بارش میں وہ گھر کیسے جائے گی، اوپر سے رات بھی ہو چکی تھی۔ علیحہ پریشانی سے سر جھکائے کہنے لگی، کوئی بات نہیں سر، کوئی نہ کوئی ٹیکسی تو مل ہی جائے گی۔ مگر برستی بارش کی وجہ سے زارون نے علیحہ کو گھر چھوڑنے کی پیشکش کر دی، جسے اس نے ایک نعمت سمجھا، اور وہ زارون کے ساتھ گھر تک چلی گئی۔ باس تو اسے دروازے پر ہی چھوڑ کر واپس جانا چاہتا تھا، لیکن اسی نے انہیں مجبور کر کے اماں سے ملنے کا بول دیا۔ باس کے اندر آنے کے بعد باہر سے محلے والوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ ارے میں نے تو کئی بار اسے غیر مردوں کے ساتھ آتے دیکھا ہے، نہ جانے کیسی لڑکی ہے جو رنگ برنگے مردوں کو گھر تک لے آتی ہے۔ باہر سے لوگوں کی آوازیں اسے پریشان کرنے لگی۔ زارون نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہی میں سے ایک بڑے میاں نے آگے بڑھ کر یہ کہہ کر زارون کا منہ بند کر دیا کہ اب تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، ہم روز روز یہ بے حیائی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر جہاں علیحہ اور اماں دنگ رہ گئے تھے، وہیں زارون بھی پریشان سا لگنے لگا تھا۔ وہ تو جانتا تھا کہ علیحہ کیسی لڑکی تھی، اور اب اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ لوگ اس کی وجہ سے علیحہ کے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ تبھی اس نے سب لوگوں کا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ وہ علیحہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ زارون کی بات سن کر علیحہ اور اماں چپ کے چپ کھڑے رہ گئے، اور پھر علیحہ کا نکاح زارون کے ساتھ پڑھا دیا گیا، اور وہ جو اسے چھوڑنے آیا تھا اب واپس اپنے گھر لے کر جا رہا تھا، لیکن وہ اسے سیدھا ریسٹ ہاؤس لے آیا، کیونکہ گھر پہنچ کر وہ ماما کو کیا بتاتا کہ علیحہ کون ہے، اور وہ اسے اس وقت اپنے ساتھ گھر کیوں لے کر آیا ہے۔ اسی لیے وہ علیحہ کو ریسٹ ہاؤس لے آیا۔ علیحہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، مگر زارون اس کو حوصلہ کیسے دیتا؟ اب شاید وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ زارون کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھا ہے۔ اب وہ اپنے ماما بابا کو کیا جواب دے گا؟ اب وہ سوچ رہا تھا کہ جو باتیں علیحہ کے متعلق اس نے سنی تھی، اگر وہ سچ ہوئیں تو وہ اپنی اس غلطی کو کیسے سدھارے گا؟ وہ علیحہ کو ایک کمرے میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا کہ آخر وہ اتنا بڑا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے کیسے کر سکتا ہے۔ وہ ساری رات اس نے پریشانی میں گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ علیحہ سے ملے بغیر ہی ریسٹ ہاؤس سے نکل آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج واپس آ کر علیحہ کو طلاق دے دے گا، کیونکہ اس نے یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا تھا۔ آفس میں سارا دن اس نے پریشانی کی حالت میں ہی گزارا تھا، اور جب شام کو سارا کام ختم کر کے وہ ریسٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہوا تو پکا ارادہ کر چکا تھا کہ وہ علیحہ کو آزاد کر دے گا۔ اس کا قدم قدم بھاری ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ علیحہ کے کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سامنے اس کا
शाम का अंधेरा छा रहा था। तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ कूच कर रहे थे। रोशनियों के शहर कराची में भी अब शाम ढलने के बाद हर तरफ रोशनियों का राज था। ऐसे में वो अपने कमरे से मुंसलिक छोटी सी बालकनी में कपड़े सूखने के लिए फैला रही थी, जो वो हर दूसरे दिन हाथ से धो लिया करती, क्योंकि उसकी आमदन इतनी नहीं थी कि वो वॉशिंग मशीन ही खरीद सके। वैसे भी कपड़े कौन सा इतने होते थे, घर में वो और उसकी माँ ही तो थे, तो वो कपड़ों के 2 जोड़े हाथों से ही धोकर छोटी सी बालकनी में फैला दिया करती। तभी उसे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। अम्मा कह रही थी, अलीहा बेटा, ज़रा मौसम की सूरत हाल भी देख लेना। कल भी बारिश की वजह से सारे सूखे हुए कपड़े भीग गए थे। कराची के मौसम का कौन सा कोई पता होता है। अभी धूप है, चंद लम्हों के बाद झांको तो बारिश हो रही होती है। और अलीहा अम्मा को तसल्ली देने वाले अंदाज में बोली कि अम्मा, बाहर तो कोई बादल वगैरह नहीं है, बस शाम का अंधेरा ही फैला हुआ है। शाम होते ही ट्यूशन वाले बच्चे भी अपने अपने बैग समेटते हुए अलीहा से छुट्टी लेकर अपने अपने घरों को जाने लगे। अलीहा ने सबको एक बार फिर से याद करवाया कि कल सब बच्चे अपना अपना काम लाजमी करके लाएं, क्योंकि इम्तहानात करीब हैं और वो नहीं चाहती कि उसकी मेहनत ज़ाया हो। बच्चों को रुखसत करके वो अम्मा के साथ ही किचन में आ गई और अम्मा से कहने लगी, आप जाकर आराम कर लें, बाकी काम मैं समेट लूँगी। अम्मा अलीहा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बच्चों को तो पढ़ा ही चुकी हो, अब थोड़ा आराम कर लो और फिर अपनी भी किताबें पढ़ लो। अगर बच्चों के इम्तहानात होने वाले हैं तो तुम्हारे भी तो इम्तहानात करीब हैं। अलीहा ने माँ को गले से लगाया और कहने लगी, मेरी प्यारी अम्मा, आप क्यों फ़िक्र करती हैं? आपको मालूम है कि मैं आज तक अपनी क्लास में अव्वल आती रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। इसीलिए आप मेरी फ़िक्र छोड़ें और लाएं मुझे काम करने दें। और अम्मा के हाथों से सब्ज़ी पकड़कर बनाने लगी। अम्मा ने अलीहा के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए उसको दुआ देने लगी, जीती रहो मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। और दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए किचन से बाहर आ गई। अलीहा ने जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बनाई और रोटियां बनाकर अम्मा के पास ही आकर बैठ गई। अलीहा अपनी माँ के साथ कराची के एक गुंजान आबाद इलाके में एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। अलीहा के अब्बा एक टैक्सी ड्राइवर थे और एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और वो अलीहा और उसकी माँ को दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए थे। अलीहा की माँ ने बहुत मुश्किलों से लोगों के कपड़े सिलाई कर कर के अलीहा को अच्छी तालीम दिलवाई थी और ये भी शुक्र था कि जिस फ्लैट में वो रह रहे थे वो उनका अपना ही था। अलीहा पढ़ाई में भी अच्छी थी और अब तक स्कॉलरशिप पर पढ़ती आ रही थी और अब उसके बीएससी के इम्तहानात होने वाले थे। वो इंग्लिश में बीएससी कर रही थी, साथ साथ बिल्डिंग के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा दिया करती थी और उसकी अम्मा लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। इस तरह से दोनों मिलकर घर के अखराजात पूरे कर लिया करती। अब अलीहा की कोशिश थी कि वो इम्तहानात के बाद किसी नौकरी की तलाश शुरू कर दे, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी और ट्यूशन वाले बच्चों की फ़ीस से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। अम्मा की नज़र भी अब कमज़ोर होती जा रही थी, इसीलिए वो सिलाई मशीन के सामने भी अब कम बैठती थी। अम्मा जब भी सिलाई मशीन के आगे बैठती तो अलीहा अम्मा से कहती कि अम्मा, बस 2-4 महीनों की बात है, उसके बाद मुझे ज़रूर कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आपको लोगों के कपड़े सिलाई करना नहीं पड़ेंगे। आपने जितनी मेहनत करना थी आप कर चुकी हैं, अब मज़ीद अपने आप को हल्कान मत किया करें। और अलीहा की बात सुनकर अम्मा बस मुस्कुरा दिया करती। वो जानती थी कि उनकी बेटी बहुत काबिल है और उसको लाजमी कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अलीहा के अब्बा के एक ही भाई थे, मगर अलीहा ने उनको कभी देखा नहीं था, क्योंकि वो अपनी तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले गए थे और वहाँ उन्होंने अपनी पसंद की शादी कर रखी थी। जब तक अलीहा के अब्बा हयात थे, अलीहा ने अब्बा को कभी कभार ताया से फ़ोन पर बात करते हुए देखा था,
जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था, उन माँ बेटी का उनसे कोई राब्ता नहीं था और ना ही कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि ताया किधर हैं। वो तो अपने भाई की वफ़ात पर भी नहीं आ सके थे। बस अब ये दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। उनको इस फ्लैट में रहते हुए 24 साल हो चुके थे। अलीहा का सारा बचपन इसी जगह गुजरा था और आसपास के फ्लैट्स वाली औरतें भी इन माँ बेटी से अच्छी तरह से वाकिफ़ थीं और मुश्किल वक्त में इनकी मदद भी कर दिया करती थीं। और आसपास के लोग अलीहा को शुरू से जानते थे, इसीलिए उसके पास अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भी भेज देते और अलीहा भी खूब दिल लगाकर उन बच्चों पर मेहनत किया करती थी। अलीहा के इम्तहानात ख़त्म हो चुके थे। इम्तहान ख़त्म होते ही उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल को उठाया, दुपट्टे को सलीके से सर पर लिया और अम्मा के पास चली आई और अम्मा से कहने लगी, अम्मा दुआ करना, मैं जिस मकसद के लिए जा रही हूँ अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी अता करे। अम्मा ने अलीहा के माथे पर बोसा दिया और कहने लगी, जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे तेरी मेहनत का फल ज़रूर देगा और तू अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी। अलीहा अम्मा से दुआएं लेते हुए अपना बैग संभालते हुए घर से बाहर निकल आई। आज धूप कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन अलीहा रिक्शे के इंतज़ार में खड़ी रही। दूर से एक रिक्शा आता हुआ नज़र आया तो उसने हाथ के इशारे से रिक्शे को रोका और उसको एक एड्रेस बताकर रिक्शे में सवार हो गई। वो एक स्कूल में इंटरव्यू के लिए आई थी और स्कूल की प्रिंसिपल अलीहा का हुलिया देखकर उसको कहने लगी कि आपके ग्रेड तो अच्छे हैं, लेकिन अभी आपकी डिग्री भी मुकम्मल नहीं हुई और ना ही आपका स्कूल में पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस है, तो मैं किस तरह से आपको नौकरी दे दूं? अलीहा ने जल्दी जल्दी से अपनी सफाई में कहना चाहा कि वो काफ़ी अरसे से बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ा रही है, मगर प्रिंसिपल ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही अलीहा को कहा कि देखें, घर में और एक बड़े स्कूल में पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है। पहले आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम इस बारे में कुछ सोचेंगे। और अलीहा की फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। अलीहा ने मायूस होते हुए अपनी फ़ाइल उठाई और उस स्कूल से बाहर निकल आई। उसके बाद वो और 3-4 बड़े स्कूलों में गई, मगर हर जगह से उसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता कि अभी ना तो उसकी डिग्री मुकम्मल है और ना ही उसके पास स्कूल में पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस है। अलीहा मायूस सी एक पार्क में दरख्त के नीचे बने हुए बेंच पर जा बैठी। अलीहा दोनों हाथों से अपना सर थाम कर बैठ गई। उसको नौकरी ढूंढना जितना आसान लगा था, ये इतना आसान काम नहीं था। वो घर से यही सोच कर निकली थी कि किसी अच्छे से स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई करेगी, मगर हर स्कूल से उसको एक ही बात कहकर इनकार कर दिया गया था। अलीहा बहुत देर तक उस बेंच पर बैठी सोचती रही कि अब वो कैसे कोई नौकरी करेगी, क्योंकि घर के अखराजात पूरे करना तो अब मुश्किल होता जा रहा था। बहुत देर तक भी जब उसको इस मसले का कोई हल नज़र ना आया तो वो बोझल कदमों के साथ घर की तरफ रवाना हो गई। घर में दाखिल होते ही उसने मुरझाई हुई आवाज़ में अम्मा को सलाम किया और अपने कमरे की तरफ चली गई। अम्मा पानी का गिलास लिए उसके कमरे में आई और उसकी मुरझाई हुई सूरत देखकर उसको तसल्ली देने लगी कि बेटा तुम परेशान क्यों होती हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और अलीहा थकी हुई नज़रों से अम्मा की तरफ देखने लगी और कहने लगी, अम्मा मैं तो बहुत उम्मीद लेकर घर से निकली थी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी उम्मीदों पर इस तरह से पानी फिर जाएगा। अम्मा ने उसे प्यार से गले लगाया और कहने लगी, बेटा तुम फिक्र मत करो, जिस अल्लाह ने हमें आज तक रिस्क दिया है वो आगे भी ज़रूर कोई ना कोई वसीला बना ही देगा। और अलीहा ने आंखें मूंद कर अम्मा के कंधे पर सर रख दिया। अगले दिन से फिर अलीहा ने अपने डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल उठाई और अम्मा से दुआएं लेते हुए एक नए अज़्म के साथ नौकरी की तलाश के लिए घर से निकल पड़ी। इस बार उसका रुख स्कूलों के बजाय शहर की बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ था। अब वो सोच चुकी थी कि स्कूलों में तो इसको नौकरी नहीं मिलने वाली, तो मुझे ज़रूर किसी ऐसी जगह कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी उसका रिज़ल्ट आने में भी बहुत टाइम बाकी था और तब तक वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी। उसने बहुत सी कंपनियों में अपनी CV जमा करवा दी। शहर में फिरते फिरते उसको वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था
और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। तभी उसका मोबाइल ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। उसने अपने बैग में से मोबाइल फ़ोन निकाला तो स्क्रीन पर अम्मा का नाम देखकर जल्दी से फ़ोन कानों को लगाया। अस्सलामुअलैकुम अम्मा जी, मैं बस आ रही हूँ। ये कहते हुए उसने फ़ोन बंद करके टाइम देखा तो वो माथे पर हाथ मारकर हैरान हो गई कि उसको आज इतना टाइम कैसे लग गया था। उसने घर में अम्मा को इत्तला भी नहीं दी थी। अम्मा घर में अलग परेशान हो रही थी। उसने जल्दी से एक रिक्शा रोका और घर की तरफ चल पड़ी। घर में दाखिल होते ही उसने अम्मा को सलाम किया और अम्मा के गले में बाहें डालते हुए कहने लगी, मेरी प्यारी अम्मा, आप परेशान क्यों हो गई थी? मैं आपको बता कर तो गई थी कि हो सकता है मुझे देर हो जाए, क्योंकि नौकरी की तलाश में जगह जगह पर फिरना तो पड़ता ही है ना। और अम्मा ने उसके माथे पर प्यार करते हुए खाने का पूछा तो अलीहा कहने लगी कि उसका सारा दिन मसरूफ़ ही इतना गुजरा कि उसे खाने की होश ही ना रही थी, और जल्दी जल्दी से अपने बाल समेटते हुए उठने लगी कि मैं अभी मुंह हाथ धोकर खाना लेकर आती हूँ। तो अम्मा ने बाजू से पकड़कर उसे बिठाया और कहने लगी, तुम आराम से बैठो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। पहले ही तुम सारा दिन की थकी हुई घर लौटी हो। और अलीहा ने इस बात में सर हिला दिया। अम्मा किचन में गई और जल्दी से खाना गर्म करके ट्रे में निकाल कर ले आई। जैसे ही अम्मा ने ट्रे अलीहा के सामने रखी तो अलीहा ट्रे की तरफ देखकर खुश हो गई और अम्मा से कहने लगी, वाह, आज तो आपने मेरी पसंद का खाना बनाया है। अम्मा जानती थी कि अलीहा को दाल चावल कितने पसंद थे। अलीहा की बात सुनकर अम्मा मुस्कुरा दी और दोनों माँ बेटी खाना खाने लगे। आज अलीहा को कंपनियों में CV दिए हुए 3 दिन हो चुके थे, मगर अभी तक उसे किसी भी कंपनी से कॉल नहीं आई थी। और अब वो परेशान होने लगी थी कि अगर उसे किसी कंपनी में भी नौकरी ना मिली तो वो क्या करेगी। अलीहा बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी और बार बार अपना मोबाइल फ़ोन देखती। अम्मा उसकी परेशानी अच्छी तरह समझती थी और वो बार बार अलीहा से कह रही थी कि बेटा तसल्ली रखो और अल्लाह से दुआ करो, वो ज़रूर कोई ना कोई वसीला बना ही देगा। परेशान क्यों होती हो? एक जगह आराम से बैठ जाओ, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती। अम्मा के जवाब में अलीहा कहने लगी, अम्मा मैं क्या करूं? मुझे ना तो किसी स्कूल में नौकरी मिली और मुझे लगता है कि अब किसी कंपनी में भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तभी अलीहा का फ़ोन थरथराने लगा। अलीहा ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और हैरानगी से अम्मा से कहने लगी, न जाने किसका फ़ोन है, और फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो जी, मैं अलीहा बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से कोई पूछ रहा था, आप कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मैम, आपने कुछ दिन पहले हमारी कंपनी में अपनी CV ड्रॉप की थी। हमारी कंपनी के ओनर आपसे मिलना चाहते हैं। आप कल किसी भी टाइम आकर इंटरव्यू दे जाएं। और अलीहा खुशी से उछल पड़ी थी। अलीहा के चेहरे को देखकर अम्मा को अंदाज़ा हो गया था कि उसे किसी कंपनी की तरफ से ही कॉल मौसूल हुई थी। अलीहा ने जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कहकर फ़ोन बंद कर दिया और भागकर अम्मा से लिपट गई। अम्मा कहने लगी, मैंने कहा था ना कि अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई वसीला बना देगा। तुम बस ऐसे ही परेशान हो रही थी। मुझे नफल पढ़ने दो और अल्लाह से दुआ करने दो कि वो तुम्हें कामयाब करे। और अलीहा सिर्फ एक फ़ोन आने के बाद ही बेइंतहा खुश हो गई थी। अलीहा ने अपने बाल अच्छे से बनाए और सर पर दुपट्टा लिया, अपना बैग उठाकर कंधे पर डाला और अम्मा से दुआएं लेती हुई घर से निकल पड़ी और रात को फ़ोन पर बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि जिस कंपनी से उसे कॉल आई थी वो इस शहर की बड़ी कंपनियों में से एक थी। वो इस बिल्डिंग के बाहर खड़ी पूरी बिल्डिंग को हैरानी से देख रही थी और फिर अपना हलक खुश करके वो उस बिल्डिंग में दाखिल हो गई। मतलूबा फ्लोर पर पहुंचकर उसने रिसेप्शन पर बैठे हुए एक लड़के को मुखातिब किया और कहने लगी, जी मैं अलीहा हूँ, मुझे कल रात ही कॉल आई थी और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। लड़के ने नज़र उठाकर अलीहा को सर से पांव तक देखा और अलीहा के पीछे हाथ से इशारा करके कहने लगा कि आप वहाँ बैठकर इंतज़ार करें।
जब आपकी बारी आएगी तो आपको बुला लिया जाएगा। अलीहा ने पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ पर बहुत से लड़के और लड़कियाँ बैठे इंतज़ार कर रहे थे। वो भी एक खाली कुर्सी देखकर उनके दरमियान जा बैठी। अलीहा ने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसके आसपास बैठी तमाम लड़कियाँ उसको अपने फ़ोन में मसरूफ़ नज़र आईं। वो सब लड़कियाँ मॉडर्न लिबास में मलबूस थीं और उनमें से दुपट्टा तो किसी के पास भी नहीं था, जबकि अलीहा उन सब से अलग नज़र आ रही थी। तभी तो रिसेप्शन पर मौजूद लड़के ने उसको इतना गौर से देखा था। अलीहा ने सबको नज़रअंदाज किया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार उसकी बारी आ ही गई और वो अपनी फ़ाइल उठाकर अपना दुपट्टा संभालते हुए एक बड़े से ऑफिस में दाखिल हो गई। उसके सामने ही मेज़ के पीछे मौजूद कुर्सी पर वो हाथ में पेन दबाए अपने सामने डॉक्यूमेंट्स बिखेरे बैठा था। अलीहा को देखते ही उसने कहा, जी आएँ बैठें। मेरा नाम ज़ारून है और मैं इस मल्टी नेशनल कंपनी का ओनर हूँ। और आप मिस अलीहा हैं। मैंने आपकी सीवी देखी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन तो काफ़ी अच्छी है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने अपनी तालीम स्कॉलरशिप पर हासिल की है। आपके ग्रेड तो वाकई कमाल हैं। हमारी कंपनी को आप जैसे ही मेहनती एम्प्लॉय की तो तलाश होती है जो हमारी कंपनी में भी मेहनत से काम कर सकें। और अलीहा खुश हो गई थी कि आखिरकार उसको उसकी मेहनत का फल मिल ही गया था। ज़ारून ने उससे 1-2 सवालात पूछे और उसको अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया और कहने लगा, आप कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। हमारी कंपनी के मैनेजर मिस्टर महमूद आपको सारा काम समझा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप दिल लगाकर काम करेंगी। और अलीहा इस बात में सर हिलाने लगी। जी सर, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और ज़ारून ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। आज ज़ारून पहली बार दफ्तर आया था, वो भी बाबा के बेहद मजबूर करने पर, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आया था। तो बाबा ने उसको बिज़नेस संभालने के लिए ऑफिस ज्वाइन करने का कहा था, जबकि वो अभी कुछ रोज़ आराम करना चाहता था। लेकिन बाबा के बार बार इसरार पर उसे ऑफिस ज्वाइन करना ही पड़ा। उस रोज़ अलीहा बहुत खुश थी और जब वो घर दाखिल हुई तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर अम्मा को अंदाज़ा हो गया था कि उसको नौकरी मिल गई है। अलीहा भागते हुए अम्मा के गले जा लगी और अम्मा को दोनों कंधों से पकड़कर झूमने लगी। अम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। और अम्मा कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अल्लाह पर यकीन रखो। मुझे तो तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा था। तुम ख्वामख्वाही परेशान हुए जा रही थी। चलो अब पीछे हटो और मुझे शुक्राने के नफल अदा करने दो। अगले दिन अलीहा अपने टाइम पर ऑफिस पहुंच गई और जाते ही रिसेप्शन पर मौजूद लड़के से मिस्टर महमूद का पूछने लगी। लड़के ने उसको एक तरफ इशारा करके मिस्टर महमूद का बताया। अलीहा अपना बैग संभालते हुए मिस्टर महमूद की तरफ बढ़ गई और मिस्टर महमूद के पास पहुंचकर उन्हें सलाम किया और कहने लगी, मेरा नाम अलीहा है। मेरी सिलेक्शन कल ही हुई है और मिस्टर ज़ारून ने मुझे कहा था कि मैं आपसे मिल लूँ। आप मुझे सारा काम समझा देंगे? मिस्टर महमूद ने अलीहा के डॉक्यूमेंट्स चेक किए और एक केबिन की तरफ ले गए और उसे काम समझाने लगे। काम ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, सारा कंप्यूटर वर्क ही था और अलीहा को बहुत जल्द समझ आ गया था। मिस्टर महमूद अलीहा को सारा काम समझाने के बाद वापस जाने के लिए मुड़े और कहने लगे, अगर किसी बात की समझ ना आए तो ये चंद कदम के फासले पर मेरा केबिन मौजूद है, आप मुझसे आकर पूछ सकती हैं। अलीहा ने खुशी से सर हिला दिया। जी बिल्कुल सर। उस दिन अलीहा बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने दिल लगाकर अपना काम शुरू कर दिया था। अभी उसका रिज़ल्ट आने में कुछ दिन रहते थे, लेकिन वो ऑफिस का सारा काम संभाल चुकी थी। अलीहा सारा दिन मेहनत से अपना काम करती और शाम होते ही रिक्शा या कोई टैक्सी लेकर घर वापस आ जाती। अलीहा खुश थी कि अब अम्मा को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अब वो शाम को ऑफिस से लौटती तो ट्यूशन के बच्चों को लेकर बैठ जाती
کیونکہ ان بچوں کو شروع سے وہی پڑھاتی آ رہی تھی اور ان بچوں کے ماں باپ ان کو کسی اور کے پاس بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے وہ علیحہ کے پاس ہی پڑھنے آتے تھے۔ علیحہ صبح کی گئی شام کو تھکی ہاری واپس لوٹتی تو بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتی اور بچوں سے فارغ ہو کر کچن میں اماں کی مدد کو پہنچ جاتی۔ اماں اس کو روکتی ہی رہ جاتی کہ بیٹا اب تم آرام کر لو، سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہو، مگر علیحہ اماں کے ساتھ ہی کچن میں کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی۔ آج علیحہ کا رزلٹ آنے والا تھا۔ علیحہ اپنے کیبن میں کمپیوٹر کے سامنے اپنے کام میں مصروف تھی کہ تب ہی اس کا فون تھر تھرانے لگا۔ اسکرین پر اماں کا نام روشن تھا۔ اس نے جلدی سے فون کان سے لگایا تو اماں نے علیحہ سے اس کے رزلٹ کے بارے میں پوچھا اور علیحہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اوہو، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا اماں، میں ابھی چیک کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ اور علیحہ نے فون بند کر دیا۔ فون رکھتے ساتھ ہی اس نے کمپیوٹر پر اپنا رزلٹ چیک کیا تو وہ خوشی سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس نے اس بار پھر سے امتحانات میں ٹاپ کیا تھا۔ اس کو اچھلتا دیکھ کر آس پاس موجود کیبن کے لوگ حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ تبھی ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، خیریت تو ہے نا؟ آپ کی خوشی دیکھ کر تو لگ رہا ہے جیسے آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ اور علیحہ خوشی سے اس کو بتانے لگی کہ اس نے BS انگلش میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، اس لیے وہ اتنا خوش ہے۔ تب وہ لڑکی بھی اس کو مبارکباد دیتے ہوئے سب کو بتانے لگی کہ ہماری دوست نے تو پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ جلد ہی یہ بات پورے آفس میں پھیل چکی تھی اور سبھی لوگ باری باری علیحہ کو مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ علیحہ نے چوکیدار کو بھیج کر مٹھائی منگوائی اور پورے آفس میں مٹھائی بانٹی۔ جب زارون کو اس بات کا علم ہوا تو اس کو بے حد خوشی ہوئی اور وہ خود علیحہ کو اس کے رزلٹ کی مبارکباد دینے اس کے کیبن چلا آیا۔ علیحہ زارون کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زارون نے اس کے کام کی بہت تعریف کی اور اس کے اچھے رزلٹ کی وجہ سے اس کی سیلری میں بھی اضافہ کر دیا۔ علیحہ زارون کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ زارون شروع سے ہی پاکستان سے باہر رہا تھا، لیکن اس کے طور طریقے بہت سادہ سے تھے۔ پاکستان آنے پر وہ اپنے بابا کا بزنس سنبھالنے لگا تھا۔ زارون اپنے ماما بابا کا اکلوتا بیٹا تھا اور نہایت سلجھا ہوا بھی تھا۔ ساری زندگی پاکستان سے باہر رہنے کے باوجود بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ زارون پردیس میں رہ کر آیا ہے، کیونکہ زارون کا اپنے تمام امپلائی کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ وہ سب سے بہت خوش ہو کر ملا کرتا اور ان کی ہر طرح سے مدد بھی کیا کرتا۔ آفس میں سب لوگ ہی زارون کے رویے سے خوش تھے۔ وہ علیحہ سے بہت جلد متاثر ہوا، کیونکہ علیحہ اپنا کام نہایت ایمانداری سے کرتی تھی۔ اس کو یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنا کام بہت جلد سیکھ گئی تھی، اور آفس میں زارون کی نظر علیحہ پر جب بھی پڑتی تو وہ اپنے کام میں مصروف ہی نظر آتی۔ ایک روز جب سارا آفس خالی ہو چکا اور زارون گھر جانے کے لیے آفس سے نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ علیحہ ابھی تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ تو وہ علیحہ کی طرف آیا اور کہنے لگا، مس علیحہ، کیا آج آپ کے گھر جانے کے ارادے نہیں ہیں جو ابھی تک بیٹھی کام کر رہی ہیں؟ علیحہ جلدی سے کہنے لگی، سر آج کام تھوڑا زیادہ تھا، اسی لیے ابھی تک بیٹھی کام کر رہی ہوں۔ زارون کہنے لگا، اب تو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ واپس کیسے جائیں گی؟ تبھی علیحہ کہنے لگی، سر میں کوئی ٹیکسی یا رکشہ لے کر چلی جاؤں گی۔ زارون کہنے لگا، اس ٹائم پر تو کوئی رکشہ یا ٹیکسی آپ کو نہیں ملے گی۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ آفس کے ڈرائیور کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کو ڈراپ کرائے گا۔ علیحہ منع کرتی رہ گئی، مگر زارون نے کہا کہ مناسب نہیں لگتا کہ اس کے آفس کی امپلائی اس کے آفس کے کام کی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اس لیے وہ اپنے تمام امپلائیز کا خیال رکھتا ہے۔ اور علیحہ زارون کو شکریہ کہتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج تو وہ کام میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ جب وہ اپنا کام ختم کر کے آفس سے نکلنے لگی تو اپنا موبائل فون بیگ سے نکالا
और परेशानी से माथे पर हाथ मारा, क्योंकि उसका मोबाइल तो बैटरी ख़त्म होने की वजह से न जाने कब से बंद पड़ा था। अब उसे अम्मा की फ़िक्र होने लगी थी, जो उसकी वजह से परेशान हो रही होंगी। वो ऑफिस के ड्राइवर के साथ घर पहुंची। जब गाड़ी से उतर रही थी तो बिल्डिंग के लोगों ने उसे हैरत से देखा। वो लोगों की नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए घर में दाखिल हो गई, और घर दाखिल होते ही अम्मा भागकर उसकी तरफ आई और पूछने लगी आज उसको इतनी देर क्यों हो गई थी। तब अलीहा बताने लगी कि आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उसको देर हो गई, और वो आज ऑफिस के ड्राइवर के साथ वापस आई है, क्योंकि इस टाइम पर उसको कोई सवारी ना मिलती। तो अम्मा कहने लगी इसका मोबाइल फ़ोन क्यों बंद था। अलीहा ने कहा कि मसरूफ़ होने की वजह से उसको मोबाइल चार्ज करने का याद ही नहीं रहा, और वो बैटरी ख़त्म होने की वजह से बंद हो गया था। अम्मा को अलीहा पर पूरा भरोसा था कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी, इसलिए वो मुतमईन हो गई। अब तो अलीहा को अक्सर ही काम करते हुए वक्त का एहसास ना होता, और वो ऑफिस में देर तक बैठी काम करती रहती। ट्यूशन आने वाले बच्चों के भी इम्तहानात हो चुके थे, इसीलिए अब उसे कोई जल्दी नहीं होती थी, तो वो अपने सारे काम ख़त्म करके ही घर को जाती थी, और काम ख़त्म करने में अक्सर उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था। मगर उसने अम्मा को पहले ही बता दिया था कि अम्मा उसका खाने पर इंतज़ार मत किया करें। जिस दिन उसे ज़्यादा टाइम हो जाता तो वो अम्मा को फ़ोन करके बता देती, और अम्मा बेफिक्र होकर लेट जाया करती, जबकि आसपास के लोगों ने अब बातें करना शुरू कर दी थी कि माँ ने बेटी को आज़ादी दे रखी है और वो रात को देर से घर वापस आती है। मगर अम्मा को तो अलीहा पर पूरा यकीन था, इसीलिए उन्होंने लोगों की बातों को कभी सर पर सवार नहीं किया था। अलीहा जब भी लेट हो जाती तो ऑफिस का ड्राइवर उसे घर तक छोड़ने आ जाता। एक दिन शदीद बारिश थी और ऑफिस के सभी ड्राइवर छुट्टी पर थे, और अलीहा जब ऑफिस से जाने लगी तो ऑफिस में ज़ारून के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। तो ज़ारून ने अलीहा से कहा कि इतनी बारिश में वो घर कैसे जाएगी, ऊपर से रात भी हो चुकी थी। अलीहा परेशानी से सर झुकाई कहने लगी कोई बात नहीं सर, कोई ना कोई टैक्सी तो मिल ही जाएगी। मगर बरसती बारिश की वजह से ज़ारून ने अलीहा को घर छोड़ने की पेशकश कर दी, जिसे उसने एक नेमत समझा, और वो ज़ारून के साथ घर तक चली गई। बॉस तो उसे दरवाजे पर ही छोड़कर वापस जाना चाहता था, लेकिन उसी ने उन्हें मजबूर करके अम्मा से मिलने का बोल दिया। बॉस के अंदर आने के बाद बाहर से मोहल्ले वालों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जो उसके किरदार पर उंगली उठा रहे थे। अरे मैंने तो कई बार इसे गैर मर्दों के साथ आते देखा है, न जाने कैसी लड़की है जो रंग बिरंगे मर्दों को घर तक ले आती है। बाहर से लोगों की आवाज़ें उसे परेशान करने लगी। ज़ारून ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं में से एक बड़े मियाँ ने आगे बढ़कर ये कहकर ज़ारून का मुंह बंद कर दिया कि अब तुम्हें इसके साथ निकाह करना पड़ेगा। हम रोज़ रोज़ ये बेहयाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात सुनकर जहाँ अलीहा और अम्मा दंग रह गए थे, वहीं ज़ारून भी परेशान सा लगने लगा था। वो तो जानता था कि अलीहा कैसी लड़की थी, और अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि लोग उसकी वजह से अलीहा के किरदार पर उंगली उठा रहे थे। तभी उसने सब लोगों का मुंह ये कहकर बंद कर दिया कि वो अलीहा से निकाह करने के लिए तैयार है। ज़ारून की बात सुनकर अलीहा और अम्मा चुप के चुप खड़े रह गए, और फिर अलीहा का निकाह ज़ारून के साथ पढ़ा दिया गया, और वो जो उसे छोड़ने आया था अब वापस अपने घर लेकर जा रहा था। लेकिन वो उसे सीधा रेस्ट हाउस ले आया, क्योंकि घर पहुंचकर वो मामा को क्या बताता कि अलीहा कौन है, और वो उसे इस वक्त अपने साथ घर क्यों ले आया है। इसीलिए वो अलीहा को रेस्ट हाउस ले आया था। अलीहा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, मगर ज़ारून उसको हौसला कैसे देता। अब शायद वो अपने फैसले पर पछता रहा था। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि ज़ारून को अब समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या गलती कर बैठा है। अब वो अपने मामा और बाबा को क्या जवाब देगा। अब वो सोच रहा था कि जो बातें अलीहा के मुतल्लिक उसने सुनी थी, अगर वो सच हुई तो वो अपनी इस गलती को कैसे सुधारेगा। वो अलीहा को एक कमरे में छोड़कर
दूसरे कमरे में चला गया और परेशानी से इधर उधर टहलने लगा कि वो आखिर इतना बड़ा फैसला बगैर सोचे समझे कैसे कर सकता है। वो सारी रात उसने परेशानी में गुजार दी। सुबह होते ही वो अलीहा से मिले बगैर ही रेस्ट हाउस से निकल आया। उसने फैसला कर लिया था कि वो आज वापस आकर अलीहा को तलाक दे ही देगा, क्योंकि उसने ये फैसला जल्दबाजी में किया था। ऑफिस में सारा दिन उसने परेशानी की हालत में ही गुजारा था और शाम को जब सारा काम ख़त्म करके वो रेस्ट हाउस की जानिब रवाना हुआ तो पक्का इरादा कर चुका था कि वो अलीहा को आज़ाद कर देगा। उसका कदम कदम भारी हो रहा था। जैसे ही वो अलीहा के कमरे में पहुंचा तो ये देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि सामने उसका फैमिली फ़ोटो एल्बम थामे अलीहा बहुत सुकून से बैठी थी। उसकी आंखों से अंदाज़ा होता था कि वो बेइंतहा रो चुकी थी, लेकिन अब वो ज़ारून को मुतमईन और पुरसकून नज़र आ रही थी। ज़ारून को देखते ही वो अपनी जगह पर बैठी बैठी उस एल्बम को देखते हुए बोली, क्या आप ज़ारून सिकंदर हैं? ज़ारून ने नासमझी से अलीहा को देखने लगा। ज़ारून को खामोश पाकर अलीहा अपनी जगह से उठी और एल्बम थामे ज़ारून की तरफ आई और एक पुरानी सी तस्वीर उसके सामने करते हुए बोली, क्या ये आपके बाबा हैं? ज़ारून ने नासमझी से उस तस्वीर को देखा जो उसके बाबा की दादा और उसके चचा के साथ थी, और उसने हाँ के अंदाज में सर को हिला दिया। तब अलीहा एक बार फिर पूछने लगी कि ये आपके बाबा के साथ क्या उनके भाई हैं? तब ज़ारून ने कहा, हाँ, लेकिन उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन तुम इन सब के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो? अलीहा ने एल्बम बंद किया और बाजू बांधकर ज़ारून से पूछने लगी, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? ज़ारून ने नासमझी से कहा, तुम अलीहा हो? और अलीहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मैं अलीहा हूँ, अलीहा हारून, हारून की बेटी। और अब ज़ारून सारी बात समझ गया था कि अलीहा इतनी पुरसुकून क्यों थी। वो जो उसे तलाक देने आया था अब खामोशी से साइड पर पड़े सोफे पर बैठ गया था और अलीहा को खामोश नज़रों से तके जा रहा था। वो तूफ़ान जो रात को आया था वो अब थम चुका था और वो दोनों ही अब पुरसकून नज़र आ रहे थे। ज़ारून ने शुक्र अदा किया था कि उसका जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला गलत साबित नहीं हुआ और उसने अपने चचा की फैमिली को ढूंढ ही लिया, जिसका जिक्र वो बचपन से सुनता आ रहा था। उसके बाबा वैसे तो मुल्क से बाहर रह रहे थे, मगर ये फैमिली एल्बम हमेशा से उनके साथ रहा था और वो अपनी फैमिली के बारे में अपने बेटे और बीवी को बताते रहते थे। जब से उनके भाई की वफ़ात हुई थी उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान में अपने भाई की फैमिली से राब्ता कर सके, मगर न जाने क्यों उनसे राब्ता नहीं हो सका था। तो जब ज़ारून पाकिस्तान आया तो उन्होंने ज़ारून से कहा था कि वो अपने चचा जान की फैमिली को ज़रूर ढूंढे, और ज़ारून भी अपने चचा के बारे में बचपन से ही सुनता आया था और उसके दिल में भी अपने बाबा के भाई से मिलने की तमन्ना थी, मगर वो उनको ढूंढ नहीं पाया था। और आज कुदरत ने उन दोनों को आमने सामने ला बिठाया था। ज़ारून जो डर रहा था कि शायद अलीहा के साथ निकाह करके उसने गलती कर दी है, अब वो शुक्र कर रहा था कि उसको एक पढ़ी लिखी और समझदार बीवी मिल गई थी। उसके बाबा भी इस बात से बहुत खुश थे और अलीहा की अम्मा भी अब इन दोनों के साथ रहने लगी थी, क्योंकि इस फ्लैट में अब उनका रहना मुश्किल हो गया था और वो खुदा का शुक्र अदा करते ना थकती थी, जिसने उन माँ बेटी को रुस्वा होने से बचा लिया था और अपनों से मिला दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।